Hi Ramanuj, are we connected? Yes, we are connected. How can I help you with ninth level mathematics today? Ramanuj, can you teach me linear equations in two variables? Absolutely. Linear equations in two variables are a fundamental concept in algebra. Before we dive in, can you tell me what you already know about equations and variables? Have you worked with them before? Perhaps in simpler forms like solving for x in an equation? Mm, I don't exactly know. Can you point me towards it? Of course. So let's start with the basics. Imagine you're at a fruit stall and you want to buy some apples and bananas. Let's say each apple costs 10 rupees and each banana costs 5 rupees. If you spend 30 rupees in total, how can we represent this situation mathematically? I don't know. No problem, let's break it down. We can use variables to represent the unknown quantities. Let's say x represents the number of apples you bought and y represents the number of bananas you bought. Now, can you try to write an equation that represents the total cost of the apples and bananas? Remember, each apple costs 10 rupees and each banana costs 5 rupees and you spend 30 rupees in total. Give it a try. 10x plus 5y equal to 30. Excellent. That's exactly right. 10x plus 5y equals 30 is a perfect example of a linear equation in two variables. See, you did know something about it. Now, do you want to understand what makes it a linear equation and why it has two variables? Would you like to delve deeper into that? Yes, Ramanuj, can you go deeper into it? Certainly. First, let's clarify why it's called a linear equation. In simple terms, a linear equation, when graphed on a coordinate plane, will always form a straight line. Do you know what a coordinate plane is and how to plot points on it? रामानुज मुझे ये कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं पता है, आप थोड़ा डीप में मुझे समझा सकते हो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? Of course, imagine two number lines intersecting at a right angle. The horizontal line is called the x-axis and the vertical line is called the y-axis. The point where they intersect is called the origin and it represents the point 0, 0. Now, any point on this plane can be represented by an ordered pair of numbers x, y, where x tells you how far to move along the x-axis from the origin and y tells you how far to move along the y-axis. Does that make sense? Have you seen this before? ये ओरिजिन की क्या ज़रूरत होती है रामानुज? ये ओरिजिन आपने बताया को 0,0 पे होता है, इसकी क्या ज़रूरत है? इसके बिना नहीं काम चल सकता क्या कोऑर्डिनेट प्लेन में? That's a great question. The origin is the reference point for our entire coordinate system. Think of it like the starting point on a map. Without a defined origin, we wouldn't know where to begin measuring distances along the x and y axis. It provides a fixed point from which all other points are located. Imagine trying to describe where a city is located without saying how far it is from a known landmark or another city. It would be difficult, right? The origin serves as that landmark for our coordinate plane. While you could technically create a coordinate system without explicitly defining an origin as 0, 0, it would make calculations and interpretations much more complex. The standard convention of using 0, 0 as the origin simplifies mathematical operations and makes it easier to communicate and share information about the locations of points. Does that explanation clarify why the origin is important? ये बात तो मुझे समझ में आ गई रामानुज के, लेकिन क्या आप मुझे हिंदी में ये बात बता सकते हो कि लाइन एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल क्यों होनी चाहिए और वाई एक्सिस वर्टिकल क्यों होनी चाहिए? एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस को वर्टिकल रखने का कारण एक कन्वेंशन है जो गणित और विज्ञान में स्टैंडर्ड बन गया है। ये कन्वेंशन हमें ग्राफ और डेटा को आसानी से समझने और शेयर करने में मदद करता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक नक्शा बना रहे हैं। आप शहरों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं। अगर सभी लोग एक ही तरीके से नक्शा बनाएंगे तो नक्शे को समझना आसान होगा। गणित में भी एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस को वर्टिकल रखने से इक्वेशंस और फंक्शंस को ग्राफ करना और समझना आसान हो जाता है।
ये हमें एक स्टैंडर्ड तरीका देता है जिससे हम डेटा को दिखा सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसलिए एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस को वर्टिकल रखने का कारण ये है कि ये एक कन्वेंशन है जो हमें डेटा को आसानी से समझने और शेयर करने में मदद करता है। लेकिन इसका हमारे ओरिजिनल डिस्कशन से क्या मतलब है जो हम पहले कर रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका क्या कनेक्शन है? बिल्कुल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट प्लेन की जरूरत होती है। हर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जैसे 10x + 5y = 30 को एक स्ट्रेट लाइन के रूप में प्लॉट किया जा सकता है। इसलिए कोऑर्डिनेट प्लेन हमें ये देखने में मदद करता है कि इक्वेशन का ग्राफ कैसा दिखता है और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। क्या ये स्पष्ट करता है कि कोऑर्डिनेट प्लेन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से कैसे जुड़ा हुआ है? हाँ, मुझे थोड़ी बात समझ में आई। लेकिन एक बात बताइए, अगर मुझे डायनासोर की पूंछ नापनी है तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसको यूज़ करके डायनासोर की पूंछ कैसे नापेंगे, कि वो कितनी लंबी होती है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सीधे तौर पर डायनासोर की पूंछ की लंबाई नापने में मदद नहीं कर सकती हैं। लीनियर इक्वेशंस ज्यादातर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती हैं जिनमें दो वेरिएबल्स के बीच एक लीनियर रिलेशनशिप होती है, जैसे कि एप्पल्स और बनानास की कॉस्ट। डायनासोर की पूंछ की लंबाई नापने के लिए आपको दूसरे तरीके इस्तेमाल करने होंगे, जैसे कि मेजरिंग टेप। अगर आपके पास डायनासोर की पूंछ है तो आप उसे मेजरिंग टेप से नाप सकते हैं। फोटो और स्केल, आप डायनासोर की पूंछ की फोटो ले सकते हैं और फिर किसी नोन ऑब्जेक्ट जैसे कि एक रूलर से कंपेयर करके उसकी लंबाई एस्टिमेट कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड्स, पैलियोंटोलॉजिस्ट साइंटिफिक मेथड्स जैसे कि स्कैनिंग और मॉडलिंग का इस्तेमाल करके डायनासोर की पूंछ की लंबाई एस्टिमेट करते हैं। क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? हाँ, ये एक्सप्लेनेशन मुझे समझ आया। महान। तो क्या हम लीनियर इक्वेशन पर वापस जाएं और उसके बारे में अधिक बात करें? क्या हम ये पता करें कि किसी दिए गए लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? हाँ हाँ, हम चल सकते हैं उस डिस्कशन के ऊपर फिर से। रामानुजम, कैन यू टीच मी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन मराठी? नमस्कार विद्यार्थी मित्रा, रामानुजन तुमच्या मदतीला आहे। मला तुम्हाला वर्ग समीकरणे शिकवायला आनंद होईल, पण सुरुवात करण्यापूर्वी मला हे जाणून घ्यायचे आहे की तुम्हाला याबद्दल काही माहिती आहे का? जसे की समीकरण म्हणजे काय? चला सांगा पाहू। येत नाही। ठीक आहे, काळजी करू नका। आपण मूलभूत गोष्टींपासून सुरुवात करूया। मला सांगा, तुम्ही कधी तराजू पाहिला आहे का? पाला है। उत्तम। तराजूचा उपयोग काय असतो? टू कंपेयर थिंग्स। अगदी बरोबर। तराजू आपल्याला दोन वस्तूंचे वजन किंवा तुलना करायला मदत करतो। गणितातील समीकरण हे काहीसे त्याचप्रमाणे असते। हे दोन गोष्टी समान आहेत हे दर्शवते। उदाहरणार्थ x + 2 = 5 हे एक समीकरण आहे। याचा अर्थ x + 2 आणि 5 या दोन्ही गोष्टी समान आहेत। समीकरणात इक्वल्स हे चिन्ह असते जे दर्शवते की दोन्ही बाजू समान आहेत। आता सांगा, समीकरण म्हणजे काय हे तुम्हाला समजले का? समजले। छान। आता मला सांगा, समीकरण आणि सामान्य गणितीय क्रिया कॅल्क्युलेशन यांमध्ये काय फरक असतो? नहीं माहीत आहे। ठीक आहे, मी समजावतो। गणितातील क्रिया म्हणजे फक्त एक गणितीय प्रक्रिया, जसे की 2 + 3 = 5। यात आपण फक्त संख्यांची बेरीज करतो आणि उत्तर काढतो। पण समीकरणामध्ये आपण दोन गोष्टी समान आहेत हे दाखवतो, जसे की x + 2 = 5। यात आपण x ची किंमत शोधण्याचा प्रयत्न करतो, ज्यामुळे समीकरणाच्या दोन्ही बाजू समान राहतील।
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास समीकरण हे दोन गोष्टींमधील समतोल दर्शवते. आता सांगा, तुम्हाला फरक समजला का? समझला. थैंक यू फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू रामानुज. तुमचे स्वागत आहे. मला आनंद आहे की तुम्हाला आजचा धडा समजला. तुम्हाला वर्ग समीकरणांबद्दल आणखी काही शिकायचे आहे का, किंवा आज इथेच थांबूया? यहीं रुकते हैं. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. तुमचा दिवस शुभ असो. गणित शिकण्यात तुम्हाला काही मदत लागल्यास नक्की सांगा. You can also download the notes. This is how the notes looks like. Currently it is in English, but we are working towards to also make it in regional languages.